all members. Welcome to Dr. Lear Bakhtar. We are studying since 9 days the webinar series on the occasion of Hanuman's birthday. We are daily enjoying the learning with all the respected mentors, and today is the last day. And so the today's speaker is also special, and she is a successful homeopath, a good teacher, a good poet, and a sincere mother and a best friend. Uh, she is on daily sharing the rubrics with deep knowledge and deep explanation of the rubrics, and she is popular to everyone as a humble and kind woman. And she is now presently working at the Vinitai Yashwantrao Homeopathic Medical College at Kolhapur. So let's welcome Mansi Patil, my best friend. Welcome. Let's clap for Mansi. Big clap Welcome, for her. Mansi. Thank you, madam. thank you. All the best. Thank you, Padma. Thank you. So before Dr. Mansi starts the lecture, I would request her to correct the camera first because it is showing only her face. अच्छा धीरेन भी आ गया आज माशाल्लाह क्या बात बेटा तेरा स्पॉटलाइट and I request everybody to kindly mute their mobiles please. Abhijit and who else is Dr. धीरेन मोबाइल आपका ये करो प्लीज रजनीत सब लोग कृपया उतना एक जरा करें except for the speaker and others please बेटा ते सब हे कर व्हिडिओ हे कर स्पॉटलाइट केलंय मानसी मॅडमला. मानसीचा व्हिडिओ स्पॉटलाइट झालेला नाही ओके झालंय. अच्छा ठीक आहे माझ्यापर्यंत नाही आला एनिवेज सो मानसी बेटा तुझा हे कनेक्ट व्यवस्थित केलं का कॅमेरा मानसी का कैमरा अभी भी डार्क दिख रहा है okay she must be having any call. Oh, before she starts I have few things to share for today's day and friends it's a day where actually destiny has taken away one of our very important personalities of homeopathy especially from India and I was very close to Dr. Mohanty sir for long period of time. Though I have not been very, I did not get much time to learn from sir, but I have attended sir's 3 CTPs, I guess, and I had organized sir's seminar also. First time in Thane and Kalyan, I mean, in Mumbai and Aurangabad. So sir's first seminar in Aurangabad was organized by me and my team in Aurangabad. I had the fortune to travel with sir from Kalyan to Aurangabad overnight, then have dinner with sir and then stayed with sir that night and I saw him after that. Like we dropped him to the airport, Aurangabad airport. We never discussed homeopathy. I hardly remember when we were there together. I did not discuss homeopathy with sir. As with such great people, study and all, though we have, when in the seminars, we can learn from them. Otherwise, we were just talking, listening to songs and listening to ghazals and enjoying. Once I had drove from Nasik to Mumbai, sir, there was a seminar in Nasik, and I drove to Mumbai. You know, I was driving. Sir was sitting beside me in the same car. So twice we had a short journey. One was a long, one was short journey, and we enjoyed talking. Anything, nothing on homeopathy, just anything, just like friends. And he had liked the collection of my ghazals and songs. And then औरंगाबाद में सर को घुमाया था केव्स में सर को घुमाया था मैं तब डॉक्टर राव भी थे हमारे साथ में राव सर भी थे सॉरी it's a great loss to us and also for his family no doubt
last year on 17th of April, I had called sir, but we could not talk. Sir did not pick up the phone. I guess that time he was not well. That time only he was suffering. And then on 20th, sir passed away in a hospital in Delhi of COVID. It's sad, very sad. There are times when I remember, sir, I used to call sir many infrequently, but not to ask any question and all, just to hear him. ऐसे ही सर आपकी याद आ रही इसलिए कॉल किया, ऐसे ही कॉल होता था. राव सर के साथ भी मैं ऐसे ही कॉल करता था कि बस सर आपकी याद आ रही इसलिए कॉल कर रहा हूँ. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस हमको सुन के ही कुछ मिल जाता है, पता नहीं क्या मिलता है, बट ऐसे होता है. ये अक्सर होता है मेरे साथ. मैं करता हूँ अपने दोस्तों को भी कि बस आपको सुनना है, बट ये स्पेशल थे, स्पेशल है. अभी भी सर गए ऐसा नहीं लगता है. कमी तो बहुत खलती है सर की. मैं सर जाने के बाद में सोचता था कि अब मेरे लिए कौन है, लाइक कि मैं जिससे पूछूंगा कि जिंदगी में कभी बहुत मुश्किल आए तो मैं किससे पूछूंगा होम्योपैथी के बारे में. बहुत जैसे बहुत डिफिकल्ट लगे तो किससे पूछूंगा. तो मैं ये चीजें मेरे करीब के जो लोग हैं, डॉक्टर मानसी, निशु, प्रिया, प्रणीता, my wife, then my friends like एजाज एंड ऑल, इन लोगों से शेयर किया था कि आप कौन है, मतलब मेरे लिए कौन है. मतलब आप लोगों के लिए तो मैं हूँ. आप लोग सब बच्चे ये बोलते हैं सर आप है हमारे लिए, बट मुझे वो कमी लगती है. हालांकि मुझे उनसे कभी कोई डिफिकल्टी पूछने का जरूरत नहीं पड़ा लाइफ में, या मुझे ऐसा लगा कि सर बिजी हो गए तो इसलिए भी मैं पूछा नहीं. कई बार मुझे ऐसा सिली लगता था कि क्या पूछे ना ये सर से. बट कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी ऐसा मौका खुदा ना खास्ता जब आए तो मैं किससे पूछूं ना. तो ये भी एक वजह है कि मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोग ऐसे बनो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं. मैं करता भी हूँ, मानसी वगैरह इन लोगों से मैं करता हूँ, निशु से, इन लोगों से, कि जब मुझे कुछ मुश्किल पड़ती है तो मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने करीबी जो दोस्त लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे करता हूँ डिस्कस. तो ज्यादा बोलने को बहुत मन है, बट बोलने को बहुत ज्यादा बातें नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत है. सर की हंसी अभी भी याद आती है. एक राव सर का और क्या कहते हैं, मोहंती सर का और राव सर का एक फोटो में लिया था औरंगाबाद में, जो बहुत अच्छा है, जिसमें मोहंती सर ने पर्पल टी शर्ट पहना हुआ है, राव सर कैसे कांधे पे, और वैसा बता रहे हैं दोनों एक से, कैसा आगे कुछ बता रहे थे. और मैं ऐसे ही कैंडिड फोटोज बहुत लेता हूँ. मुझे बहुत शौक है फोटोज लेने का, क्योंकि मोबाइल में फोटो लेने के पैसे नहीं लगते. हमारे बचपन में फोटो बहुत महंगा था लेना. मैं बहुत कैंडिड फोटोज लेता हूँ, अपने करीबियों की तो बहुत लेता हूँ. तो वो तस्वीर अभी भी मेरी आंखों में है. राव सर बर्मुडा में थे और मोहंती सर जीन्स और वो पर्पल टी शर्ट में थे. और सर का पान खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था. खाना खाने के बाद में सर का पान हमेशा जब भी रहे तो आई यूज्ड टू कीप विद मी. ये है चीजें. दिल्ली में मैं सर के 3 CTPs अटेंड किया था. डॉक्टर जहीर और नासिक के हमारे कुछ मित्र थे. एक बार मेरी वाइफ भी थी CTP में 1 वीक के लिए हमारे साथ. और बॉम्बे में भी 4-5 सेमिनार में किया हूँ सर के. औरंगाबाद का और कल्याण का सेमिनार जो मैं अरेंज किया था, तो उसमें चूंकि आई वाज पार्ट ऑफ अरेंजमेंट, तो मैं कुछ भी नहीं देख पाया था तब उनका. हालांकि मैं वो रिकॉर्डिंग देखूंगा ऐसा लगा था. उसका रिकॉर्डिंग मैं अभी भी देख नहीं पाया हूँ. एनीवेज, जाने वाले चले जाते हैं, उनकी यादें छोड़ के जाते हैं. छोटी मोटी जो भी यादें होती है, तो शंकरन सर को मैं ऐसे ही मिलने जाता हूँ कभी कभी, जस्ट फॉर नो रीजन, एंड बस सर के दर्शन देख के आ जाता हूँ. मुझ में जो एक आदत है हेलो हेलो बोलने की, वो मैं
सर से मुझे मिल लगी है। और ये जो बेटा बेटा लफ्ज यूज करता हूँ, ये मेरे डॉक्टर मोतीवाला सर की आदत है। तो डॉक्टर मोहंती सर तो गुरु नहीं कह सकता उनको, मेरे भाई थे बड़े, तो बहुत ज्यादा करीब दिल के थे मेरे साइड से। एनीवेज, मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ शायद से। तो आज हम सर की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम दुआ करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि सर के जन्मदिन को हम सेमिनार रखा करें हर साल इंशाल्लाह। और सर को याद करेंगे हम। एक कहावत है कि इंसान 2 बार मरता है, एक बार जब वो असल में मर जाता है, जब उसकी डेथ होती है, और दूसरा तब हम उनको याद करना छोड़ देते हैं। We die twice in life, once when we die and second when we are forgotten. So हम लोग सर को जिंदा रखेंगे हमारी यादों में, और हम उनको, उनकी याद भी हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह। ओवर टू यू डॉक्टर मानसी। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा बड़बड़ कर दिया होगा। डॉक्टर मानसी is a very sincere, hardworking and very trustworthy person, very just like a friend to me and child, and she takes care of all the writing part of our organization, our group, rather than calling it organization. And inshallah जैसे हमारा मैगजीन शुरू होगा, तो Dr. Mansi is going to be the editor of that magazine, which we will be starting very soon, inshallah, in month or two. So I look up to her. I have great expectations from Dr. Mansi, and I have all expectations from all. Priya, Pranita, Nishu is my sister, my darling, and all Nasir and सब मेरे एजाज एंड फारूक एंड अंबिका एंड बिहार वाले मेरे बच्चे, फिर ये मानिक, आप सबसे मैं बहुत कुछ आप सबके लिए सपने देख के रखा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। पद्मा, आई हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम फॉर यू बेटा। आई हैव प्लान्स फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने आप सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है। तो मेरे मरने से पहले आप मेरी आशाएं, अपेक्षाएं पूरी करना। बाय। तो स्टार्ट डॉक्टर मानसी, प्लीज स्टार्ट। नहीं कर दिया सर, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, सॉरी। ओके, so I will directly share my screen. Our series, which we started on 11th April. So it was a very good concept. Thank him for arranging such a very good platform. And let us start with today's webinar, as we are getting late. So gratitude master, Dr. Samuel Hahnemann. So he has a very wonderful pathy, that is homeopathy. It is gratitude to late Dr. Praful Vijayakar sir, late Dr. Milind Rao sir, late Dr. Ashok Mohanty sir. मोहंती सर की आज पहली डेथ एनिवर्सरी है. डॉक्टर संजय सर एंड योगेश सहगल सर. ग्रेटिट्यूड टू माय मेंटर डॉक्टर लियाकत नमोले सर. सर के बारे में मुझे थोड़ा सा बोलना है, लेट हो रहे फिर भी थोड़ा सा बोल देती हूँ.
सर मतलब मैं अभी सर को बोलती हूँ कि ही इज अ विजनरी। सो जब भी वो सोचते हैं तो अगले 10 साल को सोचते हैं, और हम लोगों को भी बोलते हैं कि नहीं अभी का मत सोचो, अगले 10 साल का सोचो, क्योंकि आपकी जो पता नहीं हम लोग कितने दिन रहेंगे, लेकिन जो सोच है, अपनी सोच है, तो वो छोड़ के जाएंगे। तो इसके लिए आगे की सोचो। तो ही इज अ विजनरी एक्चुअली। एंड सर को ये बात अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है सर के लिए बोलने के लिए। तो एक पोएम है, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। अच्छा, पोएम के लिए शब्द नहीं लगते क्या? नहीं, शब्द मेरे नहीं है, भावनाएं मेरी है। और मुझे लगता है हर PhD की ये भावनाएं है, नॉट अच्छा, ओनली माइंड। मैडम आवाज ब्रेक होती Till Dr. Mansi comes, I to all the doctors and my colleagues who are here. All we are all colleagues now. There is no teacher, no student. Please remember. Anybody has any doubt? Any question anybody wants to ask? I am there. Hello. Any doctor wants to ask anything? Hello. हा सर, सिंगल डोस आणि 1 डोस मध्ये काय कसं हे करायचं? Tell me now. You tell me what exactly you mean by single dose. What is single and what is one? नमस्ते सर। नमस्ते सर। एक मिनट रुकिए रंजीत सर, सर कॉल पे। हाँ बोलिए सर। What is single dose? One dose is one dose. Okay, you just give one dose. Single dose, one time. Hello. Like one Hello. dose means you are giving one dose. You are going to give second dose. You are going to give third dose. You understand? Single means only one and single remedy. Hello. मतलब you are not going to give second dose. हाँ रंजीत बोलो। सर कोई भी मेडिसिन यदि हम देते हैं तो कितना देर तक हम, कितना मतलब समय तक हम वेट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि वो मेडिसिन जो है प्रॉपर है या नहीं है, हम अच्छा चेंज कर देखिए सकते क्या हैं। होता है ना, देखो चेंज करना तो उसका अलग क्राइटेरिया। आप लोग सभी लोग, मैं सबसे अभी बता रहा हूँ, परसों ही बताया था कि डोसेस का और फॉलोअप का देखना अगर आपको जानना है तो डॉक्टर केंट ने जो 12 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं फॉलोअप वाले, वो आप लोग जरूर पढ़े। डॉक्टर केंट की फिलोसॉफी में डॉक्टर केंट ने दिया हुआ है फॉलोअप स्टडी के बारे में। केंट 12 ऑब्जर्वेशन ना। यस सर। यस हाँ, तो दैट यू हैव टू प्लीज अंडरस्टैंड बिफोर चेंजिंग द रेमेडी। सर ने पूरा क्लियर कट दिया हुआ है डॉक्टर केंट ने। और हम लोग यूजुअली एक डोज देके पेशेंट को बोलते हैं, आधा घंटा बिठाते हैं हम लोग। कभी कभी अक्यूट अगर रहा, जैसे इफ द पेशेंट इज पेन है ना, द पेशेंट इज इन लॉट्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, तो देन वी रिपीट द डोज इन 10 मिनट्स। जैसे अगर पेशेंट लकीली आपके क्लिनिक में है तो मैं सिंगल डोज देके मैं बिठाता हूँ उनको एक डोज, मान लो कुछ भी दिया है। जैसे आज का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वेरी रिसेंट। डॉक्टर शेख अपने है एक अहमदनगर के, सुपा नगर करके एक जगह है वहां पर। तो ही हैड अ केस ऑफ HIV पॉजिटिव एंड tuberculosis also. So that patient was there on antiretroviral drugs and anticox also they had started. And patient was very cachectic and a lady of around 35-40 maybe, very dark, and she had also hair loss. So then sir called me and then we had an appointment. So when I was seeing her on video call, what she said कि मुझे पेट गोलियां ले रही हूँ, तो जो गोलियां मुझे चल रही है तो मुझे खाना नहीं जा रहा, तो मैं गोलियां नहीं ले पा रही हूँ। खाना जाए तो गोलियां लूंगी मैं। और उसने बोला कि पेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि पत्थर की जरा सख्त लग रहा है, पत्थर की तरह लग रहा है पेट मुझको, बस। दिस वाज द केस। ओके, तो आई सेड कि ओके फेयर इनफ, दिस वाज इनफ फॉर मी।
Okay, this information was enough for me. एकदम असं दगडासारखं झालंय पोट, is what she said. पत्थर की तरह हो गया है. Okay, बस पेट. But that was the thing for me. And then I went to repertory and I opened the rubric. What rubric I will open? What rubric I will take? Can anybody say anything? Hello. क्या rubric हम लोग सोचेंगे? क्या symptoms आपके दिमाग में आए अभी? सर ये डिल्यूजन के अंदर आएगा. एब्डोमेन में जाके सेंसेशन एज इफ हार्ड स्टोन. ऐसा rubric है बेटा? Sensation of the hard stone. ऐसा rubric है क्या? Sensation as if hard stone. रॉबर्ट्स में है क्या? Sensation as if में? रॉबर्ट्स. स्टमक टेक्सचर में. हाँ, स्टमक में क्या rubric है बेटा, बताइए. स्टोन, सेंसेशन ऑफ ए स्टोन. स्टमक में rubric is stone. यस सर. स्टोन सेंसेशन ऑफ, है ना. बट शी सेड पत्थर की तरह सख्त हो गया है. एब्डोमेन हार्ड सेंसेशन ऐसे है सिंथेसिस. हाँ, स्टोन सेंसेशन ऑफ भी है, सर ने बोला वो भी. दोनों रुब्रिक हम देखेंगे. देखो, स्टोन सेंसेशन ऑफ जो रुब्रिक है, मैं सबको दिखाता हूँ क्या है उसमें. कैमरा टर्न करके आई शो. अरे क्या करके रखा है, जस्ट मोमेंट. Right. And then we'll see other rubric. As what I had taken was, because the patient said it is hard like a stone. Okay, so I took hardness. Right? Hello. Yes, Now, even if you take hardness, and even if you take both, like even if you take, to be more precise, we take both. All right. So stone sensation of we'll take, and hardness, right? So hard like a stone, that's what she felt, right? So now if you take this two rubric, what are the remedies that are coming common? Now, if you see Baraita, Nux, arsenic, Miserium, Restox, Baptisia, Carboage, Ferrum, Moschus, Natrum, Phosphorus, Plumber, Pulsatilla. Okay, now what I took, how did I proceed in this case? Very simple. I go very simple always. I tell everybody to keep it simple. Yeah? So what I did, what is the remedy that is used after, say, because of the medication, over medication, because of allopathic medicine? Which medicine do we use? Naxomica, sir. Naxomica. Exactly. And what she said also, mind में, कि सर मैं कुछ खाऊंगी, तब मैं गोलियां ले पाऊंगी ना. तो उसका कंसर्न क्या था, मैं खा नहीं रही हूँ. What she said, मैं खा नहीं रही हूँ इसलिए मैं कमजोर हो गई. ओके, तो आपको डिलीजन पुअर एक आ रहा है, आपको खाना भी चाहिए, तो डिलीजन पुअर अगर आपने इसमें डाल दिया, उसके वजह से मुझे खा नहीं रही, उसके वजह से मैं कमजोर हो गई. मतलब उसको न्यूट्रिशन का, she wants nutrition, right? So here it is not delusion injured. Do you understand? मैं खा नहीं रही हूँ इसलिए कमजोर हो रही है, मतलब she wants to eat something. She wants nutrition, right? So that she doesn't feel weak. So because lack of nutrition, she is feeling weak. Hello, do you understand this? Because of lack of nutrition, she is feeling weak. So this is not delusion injured. This is delusion poor. Because of lack of money, because of lack of money, you become poor. Because of lack of knowledge, you become poor in some subjects, right? Because lack of understanding, you are poor in some subjects. We say, na, ki my English is very poor, right? Hello. So because of lack of knowledge in English, you're poor, right? Hello. So it's very simple. Now, if you take repertory and see what remedy is coming. So by common sense also, we are choosing Naxomica, hardness, and both दोनों भी लिया तो, and delusion poor, Naxomica and Miserium. And then you add this thing. आपका allopathic medicine का over medication की वजह से क्या आ रहा है, वो एक आप उसमें add कर. So I gave her a dose of Naxomica 30.
And I asked doctor to call me back after 10-15 minutes as to how she's feeling. And then within 15 minutes, like she started feeling better. And then she spoke to me and she said, उसका चेहरा मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरा भी बैड लग ये कि मोबाइल में है मेरा वो शूटिंग जो है. मतलब आप देखोगे कि इतना फास्ट इफेक्ट आया पेशेंट. सो एब्सोल्युटली इतना फ्रेश लग रहा. एंड डॉक्टर ने कॉल किया जस्ट नाउ, डॉक्टर वैशाली जिनकी बात कर रही थी, तो दैट पेशेंट फेल्ट सो सैटिस्फाइड एंड सो हैप्पी. ओके. अच्छा, और एक बाद में फिर पता चला कि उनका स्प्लीन भी एनलार्ज हो गया और हार्ड हुआ है. ओके, वो होता है ना इसके अंदर. तो दिस इज द वेरी फास्ट इफेक्ट दैट वी सी. नाउ आई गेव हर 2 more doses of Naxvamica because she was too weak, too cachectic, and I knew that single dose might not help because allopathic दवाइयों का बुलडोजर चल रहा है ना, इतनी एंटी रिट्रोवायरल और एंटीकॉक्स दवाइयां चल रही है, तो बुलडोजर है दवाइयों का इतना. तो सिंगल डोज से नहीं होने वाला, 1 डोज से नहीं होने वाला. वी आर गोइंग टू give dose like second dose and then third dose. I was repeating, like I said कि आधे घंटे से आप और एक डोज दो, उसके आधे घंटे के बाद और एक डोज दो. तो we gave her 3 doses and then we kept her on SL, and after that we are going to give another remedy. So this is how you have to see. रंजीत, I hope आपके सवाल का जवाब मिला है आपको. तो the remedy कुछ ना कुछ तो रिएक्शन, कुछ ना कुछ तो एक्शन आता है आधे घंटे के अंदर पेशेंट में. अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आपकी भूख लगी एकदम सॉलिड, उसको बहुत फर्क पड़ा माशाल्लाह से. हाँ ना, उन्होंने बताया ना. और डॉक्टर ही वाज वेरी हैप्पी. रिसेंटली अभी हमारे माइंड मेथड में उनके बेटे का भी अपने पास ट्रीटमेंट हुआ था, तो बहुत इंप्रेस हुए. तो अब नाउ ही इज इन आवर ग्रुप नाउ एंड ही इज जॉइंड आवर ग्रुप आल्सो वेयर वी स्टडी. ओके, सो दिस इज इट. हाँ, जरूरी नहीं कि आप हर केस में ऐसा आपको रिजल्ट मिले. बाय एंड लार्ज में दिखाओ कि 95% केसेस में हमको कुछ ना कुछ मिलता है, जहां पर पेशेंट को थोड़ा एक जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है. लेकिन अगर फर्क नहीं पड़े तो आप दिमाग में ये मत लाओ कि इमीडिएटली आपकी दवाई चेंज करना है. वो गलती मत करो प्लीज. ठीक है. और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? मानसी. सर थैंक यू सर, डॉक्टर. थैंक यू. ओके, डॉक्टर मानसी आले. हाँ सर. हाँ, ओके बेटा मानसी, चलो ओवर टू यू. बेटा तिला स्पॉटलाइट कर रंजीता. येस मानसी, ते स्क्रीन शेअरिंग नको करू बेटा, फक्त रेपटायशन शेअरिंग कर. आता तू बोल. तर 2 स्लाइड आहेत सर. बर घ्या. तुम्ही ऐकणार आहे का मॅडम? पाटील ना, घ्या. तुझंच आहे बेटा. Okay, sorry for the inconvenience. Before going to the today's topic, I want to hear from you. So what is the most challenging disease in the female disorder, we can say? What you face challenges in curing or taking the case? What is the most common diseases? Anyone? PCOD. Thyroid, PCOD. Okay. Chocolate cyst. Yes. Okay. So these are the most common disorders we see nowadays, and the prevalence is increasing in India also. So I have took the topic of PCOD for today's lecture. So we all know the common symptoms, as we all are practitioners here, but still I want to revise these symptoms of PCOD, or what we say PCOS. Okay,
So the commonest are the symptoms: irregular menstruation, skipped or absence of menstruation, that is amenorrhea, heavy menstrual bleeding, that is menorrhagia, excessive hair growth on face, body, including on back, belly, and chest, acne on face, chest, and upper back, weight gain, hair loss, hair on the scalp gets thinner and followed because of the increase in male hormones. Then skin darkening in region of neck, in the groin, and under the breast. So these are the common symptoms that patient may come with. Okay. So let us have a look on complications of PCOD or PCOS. So first is abnormal uterine bleeding that we saw. It may be amenorrhea, dysmenorrhea, irregular menstruation, or heavy bleeding, that is menorrhagia. And the most worst complication we can say is infertility or hypertension infertility. Then type 2 diabetes mellitus, preterm labor and premature birth, metabolic syndrome, risk for high blood sugar, high blood pressure, heart disease, diabetes, and stroke. NASH is non-alcoholic steatohepatitis. That is the main cause of hepatitis in female. Then depression because of one is hair loss maybe, or excessive hair growth. Then endometrial cancer because of the thickening of the endometrial lining, and miscarriage. Okay, so these are the complications. So patient may come with these complications also. So the rate of infertility is increasing, and the main reason behind that is PCOD or PCOS. So this is the in-depth overview. You can get it on the Google. So coming to the psychodynamics of the PCOD. Okay. So I will just read the main points. So as we see, psychodynamics means it is the conflict between the mind and the body. Okay. So what is the conflict for डॉक्टर अंकित, आपका ऑडियो बंद करो प्लीज. डॉक्टर अंकित. Yes, Mansi. Okay. So as per the JNM theory, they say that the biological conflict linked to the uterus and the fallopian tubes is a procreation conflict equal to the prostate related conflict in males, or an implantation conflict compared with mating conflict related to the cervix. Hence a miscarriage and abortion, not getting pregnant, as well as loss of a child or grandchild can trigger the conflict. In addition, the uterus and fallopian tubes correspond to the gender conflict experienced as an ugly conflict with a male feeling humiliated by a man, physical, sexual, or emotional abuse, verbal insults, disrespectful treatment by a partner, spouse, male, relative, or friend, offensive behavior of a colleague, or harassment by a former boyfriend, ex-spouse after an ugly divorce, or a male authority, supervisor, doctor, judge, policeman, etc. are possible conflict scenarios. A distressing gynecological exam could also provoke the conflict. That means these are the causes which can cause the conflict and can be the reason for the PCOD. Okay, so one more book I have referred for this, that is Lise Bourbeau's book. So what she says about this, metaphysically, the ovaries link the physical body to the sacral chakra. This energy center is related to the power of creation. The ovaries perform two specific functions, that is reproduction or the creation of a new life, and the secretion of female hormones that determine femininity. Okay. Ovarian disorders are strong messages from the body that you are not in contact
with your creative ability. So this is from Lise Bourbeau's book. So you can refer for the metaphysics. So why metaphysics is important? Again, it is actually psychodynamics we use as a tool. Not in each and every case we get the conflict or the cause, but still if we can reach to the simillimum very easily. So that's why we have to be well versed with it. Okay. Next is what our philosophy says with the conflict or the connection of mind and body. So man is the will and the understanding and the house which he lives in his body. The organs are not the man is prior to the organs. The order of sickness as well as the order of cure is from man to his organs. The real sick man is prior to the sick body. Man consists in what he thinks and what he loves. There is nothing else in man. Okay, so जैसा अब सर भी बोलते हैं बार बार हमेशा कि माइज्म क्या है, तो माइज्म इज ये सोच होती है इंसान की, जैसे आप सोचोगे वैसी बीमारी आपको आ जाएगी, तो वो हमको निकालना है. अगर सोच अपनी गलत तरफ जा रही है तो डेफिनेटली आपको वो उस तरीके का डिसीज आएगा, जैसे जेलेसी है या फिर आज का रूब्रिक मैंने लिखा था एवरेज है, मतलब लालच है. तो ये जो चीजें है, ये जो सोच है, ये सोच आदमी को बीमार गिराती है. तो इसमें से कुछ भी चीज हो सकती है जो आपकी बीमारी का कारण हो सकती है. तो ये अपने बुक्स में भी लिखा हुआ है, फिलोसफी के बुक्स में. अभी ऑर्गेनॉन पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा फिलोसफी आ ही जाती है. तो ये डॉक्टर हैनीमन ने कहाँ पे लिखा है कि माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन है, सब बोलते हैं. तो दिस इज रिटन इन एफोरिज्म नंबर 210. यू कैन रीड दैट as homework for today. So let us move towards our actual part, that is case. So I will be sharing 2 cases of PCOD. So first case is, am I audible? Everything is okay? Yes, yes. Yeah, very Yes, clear. madam. Loud and clear. ओके, थैंक यू. सो ये पहली केस है जो मैंने वीडियो कॉल पे ली थी. तो एक गर्ल है, तो जिसको मैं जानती हूँ, मतलब वो हमारी फैमिली फ्रेंड है. उसकी 20-22 साल की लड़की है, उसको मैं जानती हूँ जब वो 4-5 साल की थी, तब से मैं उसको जानती हूँ. तो जब अभी मैं वापस शिफ्ट हो गई तो उसकी मम्मी ने मेरे गांव में कांटेक्ट किया, मेरा नंबर ढूंढ के निकाला और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया. और तो मैंने बोला कि ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि उसके मेंसेस नहीं आ रहे हैं बीच बीच में. तो मैंने बोला ठीक है, आप कॉल करो, वीडियो कॉल पे हम लोग बात करते हैं. तो जैसे मैंने कॉल किया तो उसकी मम्मी बात करने लगी. तो जो भी कंप्लेंट्स है सब मम्मी ही बता रही है कि उसको ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है, 2-3 साल से ये हो रहा है, तो हमने ये ट्रीटमेंट कराया, आयुर्वेदिक कराया, एलोपैथिक कराया. अभी और एक डॉक्टर आया है तो वो बोलता है कि ये कोर्स करो 3 महीने का, तो उसके बाद ठीक हो जाएगा. तो कोर्स बहुत सारे हो गए. तो जब तक के मेडिसिन चलते हैं तब तक ठीक रहता है, तो उसके बाद मेंसेस नहीं आते वापस. तो मैंने बोला कि हाँ, तो ये बेटी बात कर सकती है? तो बोले कि हाँ. फिर भी हाँ बोली और वापस खुद ही स्टार्ट हो गई, मतलब मम्मी. तो मैंने बोला कि मुझे उससे बात करनी है, उसको मेडिसिन देनी है ना कि आपको देनी है? तो बोले कि नहीं नहीं, उसको ही देनी है, तो उससे बात कराते हूँ. तो वो आई, बेटी आई. तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है. यस. अरे बाकी लोग प्लीज यार अपना मोबाईल म्यूट क्यों नहीं करते आप लोग यार? आप लोग को हिंदी नहीं समझ में. मानसी मॅडम, मी सगळ्यांना म्यूट केलंय, तुम्ही प्लीज अनम्यूट करा. ओके. सो तो मैंने उसको पूछा कि हाँ बेटा बोलो क्या होता है. तो उसने एक जस्ट ऐसे स्माइल की कुछ नहीं ऐसी बोली. तो मैंने बोला कुछ नहीं मतलब क्या? तो बोली कि नहीं, वही जो मम्मी ने बताया ना, मेंसेस नहीं आ रहे.
तो मैंने बोला कब से नहीं आ रहे? तो बोली कि हाँ अभी 1 साल तो हो गया, तो जब तक की मेडिसिन लेती हूँ तब तक आते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, मेडिसिन बंद करो तो मेंसेस नहीं आते। तो अभी ये हुआ कि 1 साल से आए ही नहीं है मेंसेस। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर क्या लगता है तुम्हें, क्या परेशानी है उससे? तो बोली ऐसे थोड़ा सा हंस के बोली कि नहीं कुछ नहीं, मुझे क्या परेशानी। मतलब फिर क्यों लेना है मेडिसिन, क्यों लेना है? तो बोली कि कुछ परेशानी नहीं है तो फिर मेडिसिन क्यों लेना है, ऐसे मैंने पूछा उसको। तो बोली नहीं लेना चाहिए ना, वो आना चाहिए, महीना ठीक से आना चाहिए। तो मैंने बोला क्यों आना चाहिए? तो बोलती कि नहीं अभी मेरे फ्रेंड लोग का सबका ठीक से आता है, तो आना चाहिए, मेरा भी ठीक से आना चाहिए। तो मैंने बोला कि अच्छा और बताओ और क्या है, कैसे चल रहा है, मतलब इन जनरल पढ़ाई वगैरह वो सब पूछा। तो वो कुछ ग्रेजुएट वगैरह कर रही है, तो बाकी ऐसी इनफॉर्मल बातें थोड़ी हुई। तो इतने पर से ही मैंने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी। तो अभी आप बोलिए अपना अपना एनालिसिस। सिलिशिया, वाई सिलिशिया? इसको डोमिनेशन लगा मुझे थोड़ा सा ना, जैसे जिस तरह उसकी माँ प्रेजेंट कर रही है केस, अभी वो आई है केस देने के लिए, और हिचकिचाहट है उसको, टिमिडिटी भी है। जब आपने पूछा कि तुम बताओ ना क्या है, तब वो हाँ हिचकिचाहट टिमिडिटी थी बोल उसमें। सकते हैं। जी। तो ये दो को पकड़ के मैंने सिलिशिया। अच्छा एक बात बताओ हुसैन, डोमिनेशन सब्जेक्टिव रूब्रिक है या ऑब्जेक्टिव रूब्रिक? हम देखते हैं, मतलब कि समझते हैं कि वो आईपीआर के साथ मतलब वो कैसा। ऑब्जेक्टिव है। जी मतलब ऑब्जेक्टिव। You are doing wrong, beta. That's not objective. Domination is a subjective rubric. Domination you have to feel. Okay. It's more subjective than more objective. Please remember. See, it can be abuse, can be objective. See, you can see whether the patient is abused. Okay. जैसे आपके सामने किसी पर अत्याचार हो रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है ना, डराया धमकाया जा रहा है, तो that goes as abuse or sexual excess, you can say, नहीं क्या कि मतलब ज्यादती होना। लेकिन डोमिनेशन ये अंदर से फील आना आपको लगता है। हिटलर का जो था ना, वो डोमिनेशन नहीं था, वो सेक्सुअल एक्सेस था। डिक्टेटर और डोमिनेशन में आप हमेशा कंफ्यूज करते हैं, पता है आप लोगों को? डोमिनेशन में आप हमेशा है ना, डोमिनेशन अलग होता है, डोमिनेशन आपको फील होना होता है ज्यादातर। somebody had raised the hand. मेघा, डॉक्टर मेघा। हाँ मुझे मैम ये बराइटा कार्प का फील लगा, बिकॉज मदर इज ओवर प्रोटेक्टिव, टिमिडिटी भी है, वो अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रही है। मुझे उसके अपीयरेंस से, बिहेवियर से ऐसे लगा कि ये बराइटा कार्प है। ओके, तो क्या आपने क्या लिया रूब्रिक? टिमिडिटी तो बहुत सारे मेडिसिन है ना टिमिडिटी में। तो मेघा कहाँ पे प्रैक्टिस करती है? बहुत अच्छा। ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड लगे मैम, उसमें 3 ही मेडिसिन है, बराइटा कार्प, कैलकेरिया कार्प एंड सिलिशिया। ओके मेघा, वेयर डू यू प्रैक्टिस बेटा? महाराष्ट्र, हिंगोली सर। वेरी गुड, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। एनीवन एल्स? हेलो, सब डर गए क्या? अरे हम लोग आपको करेक्ट नहीं करते, हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, प्लीज घबराओ मत। सिंपल केस है। हाँ हेलो मैम, मुझे बेलाडोना का भी खिलाया है। उसकी मम्मी सब बोल रही है इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूछा फिर भी बोल रही है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या तकलीफ है बोले तो वो सहेली के आते हैं, मुझे भी आना चाहिए, इधर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा। अच्छा, उसका नेचर प्रॉब्लम लगा, इसकी वजह से बेलाडोना लगा। अच्छा, नेचर क्या लगा? फ्रीवलस बोल रहा है। फ्रीवलस, ओके ओके ओके। तो उसके लिए और क्या रूब्रिक हो सकता है जो सहेली को आता है, मेरा भी होना चाहिए ठीक से? हेलो मैम। हाँ बोलो मैम, मुझे कैलकेरिया का फील आया। ओके। मुझे टिमिडिटी लग ही रही थी उसमें,
मुझे एनवी लगा कि सहेलियों को आता है, मुझे नहीं आता है पीरियड। और और वो प्रोटेक्शन दिख रहा था मदर का, ओवर प्रोटेक्टिव है चाइल्ड, तो मुझे कल्केरिया का आपका फील आया। ओके मैम मैं बताऊं, इसमें ये जो उसको फ्रेंड को आता है उसको नहीं आता, तो डिल्यूजन डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग्स और टिमिडिटी ट्रांजैक्टिंग इन बिजनेस, ओपीएम लग रहा है। ओके अच्छा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग, ये तो बहुत बड़ा रूब्रिक है। सराउंडिंग का मतलब क्या है? सराउंडिंग का मतलब क्या है? इर्द गिर्द ना। तो कैसे आएगा यहाँ पर? कैन यू एक्सप्लेन दिस रूब्रिक डॉक्टर? Distinguished, ना? What is saying? What rubric is saying? Distinct from surrounding. Okay. Distinct. Okay. डॉक्टर साहब क्या रूब्रिक था वो? डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग, एग्जैक्ट रूब्रिक बताइए। Delusion distinct from the surroundings. Distinct. Distinguished. Distinguished में तो ओपीएम नहीं ना बेटा। फास्फोरस उसमें डिस्टिंग्विश्ड है बेटा, वो रूब्रिक इज डिस्टिंग्विश्ड ही इज। उसमें मार्बल फास्फोरस ट्रेमोनियम, उसमें ओपीएम नहीं बेटा, मार्बल फास्फोरस ट्रेमोनियम बिराट। हेलो मैडम। हाँ बोलिए। ओपीएम हैज बोरिक में है, ओपीएम के लिए अनेबल टू अप्रिशिएट हिज इलनेस। What does that? What does that? What does that mean? Unable to appreciate his illness. She is not able to अंडरस्टैंड के उसे पीसीओडी है या बाकी लोगों को आ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं आने चाहिए पीरियड्स। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है बेटा? अनेबल टू एप्रिसिएट, अनेबल टू एप्रिसिएट हिज इलनेस का मतलब क्या है? उसे समझ नहीं रहा है कि वो बीमारी है। नहीं, एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? सराहना करना ना, उसको तवज्जो देना। समझ रहे हो ना? मतलब ओपीएम बोलता है कि नहीं मेरे को बीमारी नहीं है, आई डोंट हैव। लोग बोल रहे हैं कि मेरे को कैंसर है, मेरे को डायबिटीज है, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हो ना? नहीं, मुझे ऐसे लगता है ये मतलब होता है अनेबल टू एप्रिशिएट हिज इलनेस। मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, लेकिन शी इज अनेबल टू टेक सीरियसनेस ऑफ दैट कंप्लेंट। That is frivolous, not possible. और what other? तो ये जो आप बता रहे हो ना, unable to appreciate his illness, ये अलग है बेटा। आप हर एक वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी से देख लो, फिर आपको उसका मतलब समझ आएगा, या गूगल ट्रांसलेट कर लेना तो आपको उसका आंसर पता चलेगा। उसके हंसी का रूब्रिक आप बता सकते हो? मैडम मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। हाँ, तो यहाँ पे ये रूब्रिक लग सकता है कि लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स। लग सकता है, लेकिन लाफिंग नहीं लगाया। लाफिंग मतलब क्या? मीन्स वो हंस रही है ना बोलने के पहले कि अभी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्माइल एंड लाफ? अच्छा, है ना? हाँ बरोबर है। स्माइल इज साइलेंट लाफ्टर ना? या राइट, ओके, सिंपल है ना? और हंसना मतलब हंसी उड़ाना भी होता है। हाँ बरोबर है। हंसना मतलब जोर से, जैसे द डिफरेंस बिटवीन वीप एंड क्राई। हाँ, क्लियर। एम्बैरेसमेंट है। हेलो। एम्बैरेसमेंट है। क्यों? किसने बोला ये? दीपाली मोहोळकर। अरे बाबा, स्मार्ट दीपाली। का बरं वाटलं तुला? काय वाटलं बेटा? ती हंसली ना, तर वो हंसी ना बीच में, मतलब जब मैडम ने कुछ बोला तो मतलब वो हंसी एकदम अलग टाइप से हंसी, इसीलिए awkwardness, embarrassment। एम्बेरेसमेंट और एनवी तो लिया था मैंने। जो ओवर प्रोटेक्शन बोल रहे हैं उसके लिए एक प्यारा सा रूब्रिक है, कोई बता सकता है? एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर प्रोटेक्टिव। नहीं, एलिमेंट्स नहीं है। ये जो ओवर प्रोटेक्टेड आप ले रहे हो ना, उसके बजाय और क्या हो सकता है वो पूछ रहे मैडम। पैरेंटल कंट्रोल, एक्सेसिव कंट्रोल कोई नहीं कर रहा उसको। कंट्रोल कैसे बेटा? वेदर शी इज इन कंट्रोल, शी इज अलाउड टू स्पीक ना। हेलो, मदर है ना, आउट ऑफ केयर भी हो सकता है।
मदर्स आर वेरी एंग्शियस क्योंकि उम्र की बच्ची अभी उम्र मैम होगी कैरेट डिजायर हो सकता है कि मदर ही सब कुछ कर रही है उसका, बच्ची लेकिन वो पेशेंट का रूब्रिक होना चाहिए ना, पेशेंट के लिए रूब्रिक ले रहे हैं ना हम लोग। मतलब थोड़ी पल्सिटिला की और भी जा रही है मैम ये। क्यों? थोड़ी तो पल्सर थोड़ा ही पल्सर ला दोगे कि पूरा पल्सर ला दोगे? थोड़ी जा रही है तो एक्चुअली वो कलकेरिया डीडी पल्सिटिला था मेरा। अच्छा, सब मिला के देंगे पल्सेटिला कैलकेरिया। कैलकेरिया से फर्क नहीं पड़ा तो पल्सर ला देंगे ऐसा। ये अच्छी आइडिया है। क्यों लग रही है आपको? ये कैलकेरिया लग रहा है? हाँ, ये कौन बोल रहा है? बोलो, इतनी प्यारी आवाज में कौन बोल रहा था पल्सेटिला वाली? इनको भी पल्सेटिला की जरूरत है। हाँ, पल्सेटिला जैसी हूँ ना मैं। नहीं जरूरत नहीं आपको, आप प्यारी हो बेटा, आपको आप बीमार पड़ोगी तो आपको जरूरत पड़ सकती। क्या नाम बेटा आपका? डॉक्टर एंजल पगारिया। अरे एंजल, एंजल रखते हैं आपका नाम अभी हमारे से, एंजल पगारिया। वेरी गुड। ओके, सो कमिंग टू माय एनालिसिस। ओके, और कोई बोलना चाह रहा है? नहीं आप तो जो ओवर प्रोटेक्टिव हम लोग बोल रहे हैं ना, तो उसका रूब्रिक है डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। तो ये डिपेंडेंट है बच्ची। दूसरा है एम्बेरेसमेंट, जो उसके हंसी के लिए लिया था मैंने। और तीसरा है एनवी, जो सबने पकड़ा सही। तो यस हिंजल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज पल्सेटिला। तो लेकिन क्या हुआ, पल्सेटिला मैंने दिया मेडिसिन 30 में, तो उसके बाद फ्रिवोलस रूब्रिक दैट डॉक्टर टुक इज आल्सो वेरी राइट। हाँ, फ्रिवोलस भी ले सकते हैं। वेरी मार्क्ड एक्चुअली, बिकॉज़ कोर अगर आप देखो ना तो दिस गर्ल इज वेरी फ्रिवोलस, शी इज नॉट सीरियस ना। हाँ, दूसरों को ऐसे मुझे भी चाहिए। फ्रिवोलस इज वेरी नाइस। ओके, सॉरी। तो पल्सेटिला देने के बाद 8 दिन के बाद उसका फोन आया कि मेंसेस नहीं आए। तो मैंने बोला ठीक है, रुको थोड़ी देर। तो उसके बाद और 8 दिन के बाद उसका फोन आया ऑन 15 डे दैट मेंसेस आ गए हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद उसको 2-3 महीने मेंसेस ठीक से आए, उसके बाद वापस स्टॉप हो गया। तो उसके लिए मैंने एक इंटरकरेंट मेडिसिन दिया, जो कि हम देते हैं, जैसे बोलते हैं अगर स्टैंड स्टिल पे आ जाता है कोई प्रोग्रेस, तो वहां पे इंटरकरेंट मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए वहां पे मैंने उसको मेडोराइनम दिया। तो उसके बाद वापस उसके मेंसेस आए, और फिर उसके बाद उसको एक बारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पल्सेटिला दिया था वो रिपीट किया। और उसके बाद से अभी कुछ मेडिसिन नहीं है, 1 साल से अभी सब नॉर्मल चल रहा है। तो अभी वो ठीक है बच्ची। हेलो, एम्बरासमेंट। हाँ, ये वाला हेलो। रूब्रिक। हाँ, बोलिए है ना मैम? हाँ, बोलो ना। बोल रही, कोई लड़की बोल रही, उसको बोलने दो पहले। कौन बोल रहा था? हाँ, बोलो। हाँ मैम, वो एम्बरासमेंट जो आपने रूब्रिक लिया ना, उसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए ना मैम। एम्बेरसमेंट मतलब खींच जाना ना, थोड़ा सा जो ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है, ऑब्जर्व करोगे आप तो समझ में आएगा। एम्बेरसमेंट मतलब जब आप कहीं पे हो, जैसे आपकी शॉर्ट कमिंग्स आ जाती है ना सामने सबके, तो तब जो आपकी सिचुएशन होती है उसको एम्बेरसमेंट बोलते हैं। तो ये हंसी जो है ये अलग हंसी होती है वो टाइम पे, जैसे अगर आप किसी स्टेज पे दे रहे हो, कुछ स्पीच दे रहे हो, एंड सडनली यू कम टू नो दैट योर जिप इज ओपन, देन दैट फीलिंग इज एम्बेरसमेंट। सो यहाँ पर भी उसकी हंसी वैसे ही थी, उसकी जो कमजोरी बोल सकते हैं आप लोग, जो इलनेस है वो सामने आ गई। तो उस पे उसको थोड़ी सी ये हो रही है, खींच हो रही है, खींचना बोलते हैं ना एम्बेरसमेंट को हिंदी में। तो उसकी वजह से वो रूब्रिक लिया था मैंने। ओके, थैंक यू मैम। हिरमुसना की हंसी, टिमिडिटी, बैशफुल जो हंसी है उससे हाँ, उसके साथ में थी ना? हाँ, थैंक यू मैम। बैशफुल मतलब शर्माना बेटा, और इसमें एम्बेरसमेंट में आप शर्माते हो, एट द सेम टाइम यू फील अशेम्ड।
ओके, थैंक यू सर। अपने आप को ऐसे अंदर ले लेते हो ना, इसमें एम्बेरसमेंट में थोड़ा सा पीछे चले जाते हो। चार्ली चैपलिन की मोस्ट ऑफ द मूवीज आप देखो ना, उसके अंदर एम्बेरसमेंट का बहुत अच्छा दिया है कि जिप ओपन होती है, पैंट नीचे चली जाती है, उसमें आपको दिखेगा। या फिर आपको जॉनी लीवर को आप देखो, जब जॉनी लीवर काफी मूवीज में जॉनी लीवर के आप देखोगे ना, तो एम्बेरसमेंट बहुत दिखेगा आपको। और कोई तो पूछ रहे थे कोई। जी सर, मैं पूछ रहा था सर, ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि कभी कभी अगर पल्सेटिला काम नहीं करा तो फिर सिलिशा इज अ क्रोनिक ऑफ पल्सेटिला, तो ऐसे केसेस में जब रोके तो दे सकते हैं क्या? नहीं, क्रॉनिक ऑफ पल्सेटिला नहीं होता है। परसों भी मेरे लेक्चर में आपने अटेंड किया कि पता नहीं, उसमें बताया था ना कि पल्सेटिला सिलिशा दोनों बहुत सेम होते हैं काफी जगह पर। मतलब सेल्फिशनेस, एंजाइटी अबाउट हिमसेल्फ, है ना। सिलिशा को हम कैसे समझते हैं? एंजाइटी अबाउट हिमसेल्फ की पड़ी होती है। और पल्सेटिला एक रूब्रिक में है यूजरर, है ना, मतलब सामने वाले को चाहे जितना यूज कर लेने का, पूरा निचोड़ के, मतलब गन्ना जो है ना, पूरा क्या कहते हैं उसको, गन्ने को उसके हाँ रूट्स के साथ में पूरा निचोड़ लेने का। 3 रेमेडीज है यूजरर में, लाइकोपल्सन, सल्फर। ओके, ये दोनों क्वालिटीज है ना सिलिशा की बहुत सेम चलती है, इसलिए कई बार हम पल्सेटिला को हम सिलिशा को हम पल्सेटिला समझ के चलते, दोनों भी बैशफुल है, दोनों भी है ना, तो इसलिए हम कई बार उसको नथिंग लाइक क्रॉनिक एंड एक्यूट। प्लीज निकालो। मेडोराइनम मैडम ने इसलिए दिया है क्योंकि दैट आई हैड टॉट देम, आई गिव मेडोराइनम, और वो कभी हम थूजा भी देते हैं बिकॉज ऑफ दैट फिक्स नेचर ऑफ पल्सेटिला, है ना, जो हम कई बार पल्सेटिला समझते हैं जबकि वो थूजा की। So then we give the dose of thuja, and then again can little superficial level thuja. So then we come back to pulsatilla. Okay. मैं लेक्चर के बाद ही पढ़ा था कहीं, याद नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे देखा था मैंने लेक्चर में एक्चुअली, इसलिए मेरा दिमाग में सवाल कंटिन्यू था वो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि क्रॉनिक वो चक्कर में मत पड़ भैया। मेरे को तो अभी 25-27 साल के मेरे एक्सपीरियंस में नहीं, कई बार बोलते ना कि सल्फर इज अ क्रॉनिक ऑफ एक्टिनाइट, नो, वी आर मिस्टेकिंग बोथ एक्चुअली। द प्रॉब्लम जैसे एक्टिनाइट और सल्फर एक रूब्रिक में साथ में चलते हैं, कौन सा बताइए कि ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर जी, कोल्ड ड्रिंक एमुलेट्स के अंदर दोनों कोल्ड ड्रिंक एमुलेट्स, हाँ, वो उसका लेकिन एक्टिनाइट रीएश्योर हो जाता है और सल्फर को थोड़ा सा लेके सल्फर आगे चलता है कई बार, तो हम लोग एक्टिनाइट देते रहते हैं। तो स्टेट हमारी समझ में नहीं आई होती, इसलिए हमने ये पहले जो था, ये इनिशियल डेज में ये सब चीजें लिखी हुई है कि लैक्टोसिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ लाइकोपोडियम वगैरह। तो अभी हमको वो बहुत कम रेमेडीज के बारे में गिब्सन मिलर के इसके अंदर दिया हुआ है, और बोरिक में भी दिया हुआ है लास्ट में, जो कि गिब्सन मिलर से ही लिया हुआ है। तो इससे आप थोड़ा सा इंडिकेटेड रेमेडी होती है। देखो ये क्लोज रेमेडीज है, पल्सेटिला सिलिशा आर वेरी वेरी क्लोज। अब जैसे बहुत बार आप कंफ्यूज करोगे बिटवीन पल्स एंड सिलिशा, you get confused between pulsatilla and medorainum also many times. You get confused between pulse and thuja also, because that sensation of being brittle is there in thuja. हाँ, तो which we most of the times we get confused with that touch me not of pulsatilla, है ना। तो इसकी वजह से हमको लगता है कि ये है ऐसा। मेडोराइनम ये एंटीसाइकोटिक प्रिस्क्रिप्शन था मैडम का, जो कि हमने हमारा ये है एक्सपीरियंस है अबाउट स्पेशली अबाउट पीसीओडी एंड हिर्सुटिज्म cases. So we give medorainum in between if the patient comes to stand still. वो समझ में गनोरियल हिस्ट्री होती है, हम लोग पूछते नहीं है कई बार ना, किसी को पता भी नहीं होता पेरेंट्स को गनोरिया था या कुछ था, उसके कारण मेडोराइनम का कुछ स्टेट रह जाता है हम लोगों में, पेशेंट्स में, इसलिए हम लोग एज एक दूसरे दे देते कि वो भी निकल जाए। Hello, sir. Thank you, sir. Hello, madam. Okay. Hello, sir. So it is the lecture of madam. हाँ, ask madam. This is not my lecture. Sorry, madam. जैसे सर ने कहा कि मेडोराइनम, या आपने भी कहा कि मेडोराइनम इंटर करंट देते हैं हम, तो मेरा सवाल ये है कि आपने मतलब मेडोराइनम एंटीसाइकोटिक ऐसे दे दिया, तो फिर
हाउ टू डिसाइड के मेडोराइनम कब देना है, थूजा कब देना है? वही ना, जब स्टैंड स्टिल पे आ जाता है, मतलब क्या, अभी इसको पल्सिटिला दिया था तो उससे उसके मेंसेस तो आ गए, लेकिन उसका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था तो ये जनरेशन से आता है, जैसे सर ने बताया है, सर ने सिखाया है हम लोग को। तो ये बेसिक होता है, ये मायाजम बेसिक होता ही है, तो वो जनरेशन थ्रू जनरेशन चलता ही रहता है। तो अपने को समझ में नहीं आता, वो केस टेकिंग में जैसे सर बोलते हैं कि कई कमियां रह जाती है ना, तो हम लोग को समझ में नहीं आता। तो केस लेकिन जब स्टॉप हो जाता है, प्रोग्रेस स्टॉप हो जाता है, तो अपने को समझ आते हैं पल्सेटिला तो उसकी रेमेडी है ही, क्योंकि उससे उसके डिस्चार्जेस स्टार्ट हो गए, मतलब दैट इज सिमिलिमम। लेकिन जब वो स्टैंड स्टिल पे आ गया, वो नहीं हो रहा है, आगे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि पल्सेटिला रिपीट करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, तो वो टाइम पे मेडोराइनम एक डोज दिया। यस डॉक्टर, थूजा कब देना है? जब वो पल्सेटिला में वो फ्रेजिलिटी सेंसेशन बहुत ज्यादा रहेगा ना, बहुत नाजुकपन जो लगेगा ना उसके अंदर, उसको नाजुकपना बहुत एक्सेस लगता है ना पल्सेटिला के अंदर, तब हम और दूसरा हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा अगर आपको मिलता है। देखो, एक रूब्रिक है हिपोक्रेसी, एक और रूब्रिक है क्या लेते हैं, एफिमिनेट भी एक रूब्रिक है जिसके अंदर थूजा ऐड हुआ है बाद में अभी, है ना। तो ये कुछ ट्रेड्स है। और उसके अलावा मेन चीज थूजा के अंदर आपको मिलेगा एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग अगर आप आपको मिलती है, जैसे हमने ये काफी बार हमने कोविड में मुझे बहुत ज्यादा तजुर्बा है ये थूजा और पल्सेटिला का। ठीक है, तो काफी केसेस जिसके अंदर हमको पल्सेटिला लगता था कि पहले ये पेशेंट पल्सेटिला से ठीक हो रहा है या फिर उसका टोटल स्टेट ये है, लेकिन उसके अंदर उसको अगर ये एनालिटिकल थिंकिंग है, पेशेंट आपको कुछ सवाल पूछ रहा है ना, कि इसका क्या आपके सामने, वो थोड़ा सा जिसको हम इंटेलेक्चुअल से कंफ्यूज करते हैं हमेशा। एक रूब्रिक है थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी फॉर। तो इंटेलेक्चुअल में पल्सेटिला है, आपको इंटेलेक्चुअल लगे लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लगे और फिर भी पल्सेटिला ठीक नहीं लगे, you please think of Thuja. And if the talking business part is more, okay, talking business part is more, and if you have foul discharges, if you have something like fungus more on genitals, okay, and also the sexual habit, okay, if the patient has little bit more of sexual desire or perversion in sexual desire, though both are there in adulterous, even pulsatilla is there in adultery, you know, in the rubric adulterous, but more towards sexual, right, more towards sexual this thing, and more towards talking business. Then you give Metronym 200 one dose, not intercurrent, मतलब ये नहीं कि बार-बार हमको देना है. Okay, you can come back to the old remedy after giving Metronym, because we have seen that it comes down to a superficial level like pulsatilla. Okay. Pulsatilla is a plant remedy. Metronym is again made from a disease product. Then too, and again, Metronym is a medicine prepared from the dirty part, right? It is a dirty part, right? So more, little bit towards that. If you find habits of the patient, and it's very easy actually to spot Metronym. I'll tell you. More talking business, more history of abuse in the childhood. Okay. And sleep position very marked on stomach. Then you think of Metronym, okay, and as I told you about this part, fragility sensation and all that. Then you think. Thank you, sir. Thuja. One dose only. Don't keep on repeating, and no, don't come back immediately to pulsatilla after giving Metronym. कि ये मत समझो कि Metronym दे दिया, अब चलो हो गया, पेशेंट आ गया pulsatilla पे. तो जल्दबाजी मत करो. Let Metronym go away. Let all the symptoms of Metronym go away. Okay. And then ये जो immediately मैडम ने बोला, मतलब आपने उसके बाद में दे दिया, ऐसा नहीं है. मतलब we wait for months together. Okay. Sometimes we go higher, like we started Metronym 200. Sometimes we give 1 ml also after 2-3 months. Okay. Some mild symptoms of Metronym if they are remaining, and then you might come back to pulsatilla or whichever remedy. But by and large, we have seen that they come back to pulsatilla. Okay. Right. Thank you, sir. हेलो मैम. हेलो मैम, आपने जैसे जो रूब्रिक लिया डिपेंडेंट
ऑन अदर्स, उसको स्पाइनलेस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? स्पाइनलेस मतलब इससे क्या समझते हो आप? स्पाइनलेस पर्सन भी मतलब खुद अपने बलबूते पे खड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। उसको भी डिपेंडेंसी की जरूरत रहती है, अपने डिसीजन वगैरह सब, मतलब वो दूसरों पे ही डिपेंड रहता है पूरी तरह। हाँ वो रहता है, लेकिन वो स्पाइनलेस का मतलब उसको स्पाइन है ही नहीं। बेटा खुद का बगैर स्पाइन वाले कितने एनिमल्स हैं दुनिया में जिनको स्पाइन नहीं है ना? सांप वगैरह ये लोग, इनको स्पाइन होता है क्या? नहीं। तो क्या वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं? नहीं ना। तो स्पाइनलेसनेस और डिपेंडेंसी का कुछ संबंध नहीं। डिपेंडेंस मतलब आप आत्मनिर्भर नहीं हो, सिंपल। और स्पाइनलेस मतलब आपको स्पाइन नहीं है, मतलब आपके अंदर वो एक खड़े स्ट्रेट खड़ा रहने की आप में आप खुद के स्पाइन पे, आपके खुद के इसमें आप खड़े नहीं रह रहे हो, आप में आत्मसम्मान नहीं है, आप कोई भी बात में हाँ करते हो, आप कहीं भी झुक जाते हो, ठीक है? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी इज्जत जा रही कुछ भी जा रही है। ओके जैसे ये स्लेव्स होते थे ना, स्लेव्स दे हैड टू बी लाइक स्पाइनलेस। जो हाजी हाजी करने वाले होते हैं ना ओके मानसी पूछ सके बेटा। और एक केस है छोटी सी ऐसी, सेम पीसीओडी ही था उसको, तो सेम एज 22, अराउंड 22। तो ये कोविड के दरमियान ली गई केस है। तो वहाँ पे वो लड़की एक्चुअली रहती है मुंबई में अपने भाई के साथ, भाई और भाभी के साथ, और उसके पेरेंट्स जो है वो गांव में रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ कोविड वो लोग सब शिफ्ट हो गए थे गांव में। तो उसको किसी के यहाँ से पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो आ गई और बोली कि मुझे मेडिसिन लेना है। तो मैंने बोला कि क्या होता है तुम्हें? तो उसने बोला कि मुझे अभी मेंसेस नहीं आए हैं 2-2.5 महीने से, लेकिन ऐसा होता है कि इरेगुलर हो रहा है, कभी आते हैं मेंसेस तो ब्लडिंग रुकती नहीं है, 15 दिन या फिर 20 दिन, कभी कभी 1 महीना ऐसे होता रहता है। तो अभी ये हुआ कि 2-2.5 महीने से मुझे मेंसेस आए ही नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे गांव में आ गई हूँ, नेचर के इसमें हूँ, तो हो जाएगा ठीक। तो अच्छा लगता है मुझे यहाँ नेचर में रहना वगैरह, तो मुझे लगा कि वो उससे हो जाएगा। और मैंने वो सब खाया भी, जो बोलते हैं पपाया वगैरह, वो उसके लिए मेंसेस आने के लिए ये सब मैंने ट्राई किया, तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ये किसने बोला आपको? तो बोलती कि नहीं, वो जब घर पे सब लोग बोलते हैं ऐसा, तो मैंने वो लिया सब कुछ, वो सब ट्राई किया, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मुंबई में भी ऐसा हो रहा था, तो मैंने रिपोर्ट निकलवाया, तो उसमें ये पीसीओडी निकला था। तो मैंने बोला कि अच्छा तो ठीक है, क्या होता है फिर? तो बोली कि नहीं, ब्लडिंग होता है। तो वो मतलब शी वॉज अ वेरी स्माइलिंग गर्ल। तो उसके साथ तो उसकी भाभी आई हुई थी। तो वो बोली कि इसको होता है, ब्लीडिंग होता है, 15-15 दिन ब्लीडिंग होता है, फिर भी ये किसी को कुछ बोलती नहीं है, मतलब। तो मैंने बोला कि क्यों, ऐसा क्यों, मतलब तकलीफ होती है तो बोलते क्यों नहीं हो? तो बोलती कि उसने भी हंस के ऐसे बोला कि नहीं नहीं, ऐसे मतलब क्या बोलना ना, किसी को टेंशन दे के क्या करना है, होता है तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं वो नहीं बताती हूँ किसी को, मैं अपना अपना काम करते रहती हूँ। तो बस इतना सा ही केस था, तो इस पर से ही मैंने उसको एक मेडिसिन दी थी। तो आप लोग बोलिए अभी क्या है? कॉक्यूलस। कॉक्यूलस क्यों? क्योंकि वो बोल रही है कि दूसरों को क्यों तकलीफ देना, अबाउट अदर देन ओन कंप्लेंट। वो बोल रही है कि अभी है तो है, और क्या कर सकते हैं, मतलब शी इज एक्सेप्टिंग समवेयर हर सिचुएशन, मतलब शी इज नॉट कि हाँ मुझे तकलीफ हो रही है, टेंशन आ रहा है, दवाई लेनी है,
दवाई लेनी है ठीक है, बट एट समवेयर शी इज क्वाइट अबाउट इट और नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, एक्सेप्टिंग इट कि है तो है, क्या कर सकते हैं। कंप्लेन तो नहीं कर रही है, लेकिन कैसे अडेप्शन है उसका, नेचर के पास। और बाकी की चीजें भी अपने को जोड़नी है ना उसके साथ में। हाँ, ये एक बात हो गई। हाँ, ये एक बात हो गई। और दैट मे बी घर वाले बोल रहे हैं इसलिए खा रही है, या उसको खुद को भी लग रहा है बिकॉज शी, तो घर वाले जो बड़े लोग बोलेंगे वो करेगी। तो उसको क्या बोलते हैं ये सब खाने को ट्राई करने? ट्रेडिशनल प्रेजुडाइसिस। ट्रेडिशनल प्रेजुडाइसिस तो कॉक्यूलस है क्या ट्रेडिशनल में? और कोई, और कुछ, और उसके एडिशन में और कुछ बोलना चाहेंगे? ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज तो है ही, होपफुल भी है कि मतलब वो नेचर के बीच में गई तो आ जाएगा। दूसरा स्माइलिंग भी लिया तो लाइकोपोडियम इसमें एक मेडिसिन है, तीनों रूब्रिक को। जी हाँ, मैं क्रिटिकम वल्गेरिस लग रही है मुझे। अच्छा, क्यों? स्माइलिंग है, नेचर लवर है, नेचर के प्रति उसका वो है थोड़ा, और दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बता नहीं रही है कि दूसरों को परेशान करने से क्या मतलब, तो केयर्सफुल ऑफ में है। मुझे क्रिटिकम का फील आ रहा है। ओके ओके, और कोई? हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैडम, इसमें ट्रेडिशनल प्रेजुडिस के साथ ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ले सकते हैं या यील्डिंग डिस्पोजिशन, मतलब वो सिचुएशन के साथ यील्ड कर रही है या ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, दोनों में से क्या लेने का समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल क्या लगा आपको? ये सब खाना ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है? नहीं, वो ट्रेडिशनल प्रेजुडिस ट्रेडिशनल में लिया, लेकिन वो जो बोल रही है ना कि जो है वो है दूसरों को बता के क्या फायदा, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेके लेना है या यील्डिंग में है वो? आप क्या लोगे? मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि यील्डिंग में लूँ या ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में लूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अच्छा, मतलब तो वो कहाँ तक सिचुएशन के पहुंच साथ रहे एंड कर रही है या उसका जो ऑब्जेक्शन है वो, दोनों मतलब मुझे सही लग रहे हैं। आप बताओ। यील्डिंग हो सकता है क्योंकि वो सुन रही है ना सबका, लेकिन इसके पीछे और क्या हो सकती है वजह ना, वो सब कर रही है, उसको क्या है लॉजिक है कुछ? नहीं, वो तो सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल और फ्राउलेस लैकिसिस लग रहे हैं। लैकिसिस आ रहे हैं। ट्रेडिशनल प्रेजुडाइजेस क्यों ले रहे हैं आप? वो पपीता वगैरह ये सब खा रहे हैं इसलिए मैंने वो लिया। इसमें क्या ट्रेडिशन है? नहीं, अपने रूटीनली बोलते ना, गर्म चीजें, ठंडी चीजें। रूटीन है, लेकिन ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो परंपरा से चलता आ रहा है। तो इसमें कौन सी परंपरा वो चला रही है आगे? नहीं, वो एक्चुअली ऐसी परंपरा नहीं, लेकिन अपने घर में जो पीढ़ी पर उसी को हम बोलते हैं ना, जो परंपरा को लेके चलते हैं उसी को हम ट्रेडिशनल प्रेजुडाइसेस बोलते हैं। उससे वो बाहर नहीं आते हैं, जो रूढ़ी है परंपरा है उसके साथ में ही चलते हैं ना वो लोग। हाँ, वो पपीता खाने से मेंसेस होते हैं, वो ट्रेडिशनल नहीं हो सकते। मैम, ये प्लीजिंग हो सकता है क्या कि मतलब दूसरे जो कह रहे हैं वैसा कर लो? हाँ, उसको हमने सुपरस्टिशियस लिया ना, इसको कोई लॉजिक नहीं है ना, ये पपई खाने से होता है या फिर कुछ गरम खाने से मेंसेस आ जाते हैं। यस मैम। ये पढ़ा लिखा इंसान कोई करेगा? नहीं। तो दिस इज सुपरस्टिशियस। मैम, क्रिटिकम के बाद सेकंड रेमेडी जो मेरी आ रही है वो कार्सिनोसिन आ रही है, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो प्लीज करने के लिए तो नहीं कर रही है सब। किसको प्लीज कर रही है? किसको प्लीज करने की कोशिश कर रही है? मतलब ये सब मान के वो प्लीज कर रही है ऐसे? नहीं, पर वो यील्डिंग है। प्लीजिंग नहीं है। ओके, और कोई? मैम, ये सहनशील है, ये 15-15 दिन इसको ब्लीडिंग हो रहा है फिर भी ये सहन कर रही है, मतलब किसी को बता नहीं रही है, मम्मी को भी नहीं और बता उसमें भी वो स्माइल करके बता रही है। हाँ, यस मैम।
तो कोई इमेजिन कर सकता है 15 दिन का ब्लीडिंग, उसमें पेन हो रहा है, काम भी करना है, एंड शी इज स्माइलिंग, तो इसको क्या बोल सकते हैं सिचुएशन को? हाई स्पिरिटेड हो सकती है। हाई स्पिरिटेड अफेक्टेशन क्यों? वो अपना छुपा रही है ना, वो अपना तकलीफ। ओके, अफेक्टेशन तो लिया था मैंने, लेकिन उसके जो बोलने का तरीका वगैरह था उसके लिए लिया था। वो जो ब्लडिंग बोल रही है ना, बार बार जो बोल रही है ब्लडिंग हो रहा था, ये वो ऐसे, तो उसके लिए अफेक्टेशन तो लिया था मैंने। तो अफेक्टेशन एंड सुपरस्टिशियस। बेलाडोना है क्या मैम? पेशेंस भी बहुत है। बेलाडोना क्यों? उसको कुछ पड़ी नहीं है इसके लिए? बेलाडोना पेन में कैसे हो जाता है? वायलेंट हो जाता है? मैम कार्सिनोसिन है या हाई स्पिरिटेड किसका है ये? प्लीज म्यूट कीजिए। यस, कांग्रेचुलेशंस हिंजल अगेन, दिस इज कार्सिनोसिन। तो कार्सिनोसिन से, और नेचर को भी लव करती है, ये किसी ने नहीं बोला। हाई स्पिरिटेड लिया था मैंने, अफेक्टेशन, सुपरस्टिशियस एंड हाई स्पिरिटेड। सो ये हाई स्पिरिटेड मतलब ये खुद भी उसमें हाई स्पिरिटेड रह रही है, और दूसरों को भी ये दे रही है कि किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को टेंशन नहीं लेना है, क्यों किसी को बता के उसको भी टेंशन में डालना है। ये केयर की वजह से भी होता है। और मैंने हाई स्पिरिटेड लिया था यहाँ पे, तो कार्सिनोसिन उसको 30 दिया था। उसके बाद इनफ्रिक्वेंट रिपीटेशंस हुए थे 6 महीने तक के। उसके बाद से 1 साल से अभी उसको कुछ भी मेडिसिन नहीं है, तो शी इज फाइन विद दैट एंड ओके। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछिए। अफेक्टेशन क्यों लिया? अफेक्टेशन उसका बोलने का जो तरीका था, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रूब्रिक है। तो वो जो बोलती है ना, लैंग्वेज के लिए भी हम लोग लेते हैं अफेक्टेशन। वो जो तरीका होता है ना बोलने का, ब्लडिंग जो बोल रही है, तो नॉर्मली जो पढ़े लिखे होते हैं वो ऐसे नहीं बोलते ना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ब्लीडिंग बोलते हैं। और अफेक्टेशन मतलब ये आर्टिफिशियल बिहेवियर होता है, आर्टिफिशियल बिहेवियर इंटेंडेड टू इम्प्रेस अदर्स। तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसी बातें होती है या फिर कोई गेस्चर होता है, तो उसको हम लोग अफेक्टेशन लेते हैं आर्टिफिशियल बिहेवियर के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेरीज? मैम ये अफेक्टेशन में ऐसे जो वर्ड बोलते हैं ना कभी कभी, जैसे यस, नो, या कुछ इंग्लिश वर्ड 1-2 यूज करते, वो मतलब ऐसा लगता है कि जानबूझ के यूज कर रहे, तो उसमें भी अफेक्टेशन ले सकते हैं। except if the patient is from बिहार, हाँ, क्योंकि बिहार में ये ऐसे इंग्लिश वर्ड यूज करने का बहुत आदत है, तो थोड़ा सा संभलना वहां पर। हेलो। यस सर। यस सर। यस डॉक्टर बंसी, कैरी ऑन। ओके, सो मैंने उसको एक्चुअली ये जो साइकोडायनामिक्स है, तो उसके बारे में मैंने पूछा भी था उसको कि कुछ है क्या किसी मतलब किसी रिलेशन में, जैसे कि भाई है या फिर ब्रदर, ये अपना फादर है या कोई और है जो मेल काउंटर पार्ट है, तो उसमें से किसी के साथ आपको कुछ अनबन है क्या या कुछ ऐसा है क्या। तो पहले तो उसने, जब मैंने पहले केस टेकिंग ली थी तभी तो उसने कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसके बाद में जैसे उसको समझ में आया कि ये जरूरी है अपने केस टेकिंग के लिए, तो उसके बाद में उसने वो कंफर्म चीज की थी कि वो अपने भाई के साथ जहाँ पे रहती है मुंबई में, तो उसका भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और माँ बाप वहां पे नहीं रहते, गांव में रहते हैं, तो वो मिस करती है उन लोगों को, और भाई का स्वभाव थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो वो उसको फील होता है। तो ये कंफर्म हो गया था मेडिसिन उसके बाद में।
और कुछ किसी को पूछना है? वो किसी ने डोसेज और रिपीटेशन पूछा था, आप बता दो। हाँ, रिपीटेशन तो इनफ्रीक्वेंट हुई थी, पहले 30 दिया था, उसके बाद में एक बारी 200 देके फिर छोड़ दिया, तो उसके बाद में रिपीटेशन मतलब बहुत ज्यादा रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। 2-3 महीने के बाद एक बारी बस रिपीट किया था, तो उसके बाद कुछ रिपीट नहीं किया। मैम साइकोडायनामिक्स का कौन सा बुक? साइकोडायनामिक्स के लिए बहुत सारे बुक्स है, एक जो अभी अपने ग्रुप पे शेयर हुआ है, और दूसरा है GNM थ्योरी है डॉक्टर हैमर की, तो वो आप लोग इस पे भी मिल सकता है, आपको इंटरनेट पे मिल सकता है। और दूसरा एक लीजे बॉर्बियो करके है, लव यूर सेल्फ ऐसा कुछ है, उसका नाम मैं डालती हूँ, अपना ग्रुप पे डालती हूँ। बुक का PDF डाल देना आप अगर हो तो। हाँ, बुक का PDF डाल देती हूँ मैं। थैंक यू। Yes. I think अभी no queries. Yes. Late हो गए, so thank you very much everyone for active participation. Thank you Liaquat sir for arranging such a wonderful series of webinars. Thank you, madam. I have not arranged this. You people have arranged. You people are doing. मैं सिर्फ credit ले रहा हूँ. All credit to all my team. My team मतलब our team actually, and we welcome all new people. Those who want to be the part of our team, you are welcome. Please contact Dr. Mansi, Dr. Pranita, Dr. Priyanka, जितने भी हमारी टीम में थे members, उसके अंदर you can contact especially Dr. Mansi, Dr. Pranita, Dr. Priyanka. If you all want to take session, if you all have cases to share on video, I am planning to keep this series going. Just wait for the moments. So अगर आप लोगों को इच्छा है तो आप जरूर बताएं, हम आपको आपके केसेस अगर वर्थ है तो इंशाल्लाह हम जरूर आपसे सबको हम शिवाजी बचाओ सगैना everybody, anybody, even if you are past just and you crack some case, we will give you stage. We are here to give stage to all. Okay, so please share your knowledge and don't worry about your questions. If I will be there, don't worry, मैं रहूंगा. आपको कोई सवाल भी पूछे तो मैं जवाब दूंगा, घबरा नहीं. मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए हमारे साथ जुड़े और लेक्चर ले. पर्सनल में मैसेज कर देना डॉक्टर मानसी को, डॉक्टर प्रणीता को, डॉक्टर प्रियंका को, डॉक्टर पद्मा, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स हैं, खास करके डॉक्टर मानसी को आप बताइएगा, बिकॉज वो लिखती है, वो शी टेक्स केयर ऑफ दिस थिंग. तो आप प्लीज उनसे कांटेक्ट करें, डॉक्टर मानसी, डॉक्टर प्रियंका एंड डॉक्टर प्रणीता, इन तीनों से आप ज्यादा कांटेक्ट करें. और आपकी केसेस अगर करना है तो प्लीज हमको बताएं और हम जरूर आपको स्टेज देंगे. हम लोग वेबिनार, हमारे पास में जूम का हमारा खुद का सब्सक्रिप्शन है, तो बिल्कुल नहीं घबराए नहीं. और कुछ टॉपिक पर आपको अगर हमसे सीखना है तो वो भी आप बताएं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी आपको पढ़ाएं. जल्दी हम क्रॉनिक डिसीज और ऑर्गेनन पर भी सीरीज हम लेने वाले हैं. तो इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ शेयर करना है तो प्लीज फिर से मैं आपको अपील कर रहा हूँ, चूंकि ये सबसे लास्ट लेक्चर था इस सीरीज का, तो मैं सबका फिर से शुक्र अदा करना चाहता हूँ. I'd like to thank all the people all over the world, those who are part of homeopathy, and we are open to teach all, whether you practice allopathy, whether you practice Unani or homeopathy or whatever faculty you are practicing in. We are here to share our knowledge. We have a team of doctors, and I think we are क्या कहते हैं उसको, quite sufficient to teach homeopathy. Anybody who wants to learn, anybody, we are here. So you can join our group and ask the questions, and also we'll give you stage also if you want to share your knowledge. Please to come forward. It is not that we only practice on mental symptoms. Now you must have seen the case I had shared. It's just that we give importance to the mind. Okay, so even sensation and all. So we say ki mind it. Mind method ka ek simple word hai mind it. You should mind what exactly you have to focus on is what we call mind method. Please don't confuse mind method with mental symptoms only. Please remember that.
Okay, please don't confuse that with mental symptoms. Mind method is mind your words, mind your case taking, mind the analysis part. Okay, and we are open for all the methods, whether it is sensation method, whether it is Dr. Vijay Kar's method, or even all the methods. Okay, we are here. Our inspiration, of course, is from Dr. Saigal's books that we started. We started understanding the mind, the application of rubrics in layman's language. Of course, we were thinking and we used to use these rubrics, but after reading Dr. Saigal's method, हमको बहुत ज्यादा उसका हमको फायदा हुआ इस चीज को और ज्यादा इवॉल्व करने के लिए और उसमें एडवांसमेंट लाने के लिए. फिर उसके अंदर जेस्चर्स पे हमने बहुत ज्यादा काम किया है. तो जेस्चर्स में हमारी खुद की इन्वेंशंस भी है, तो हमारी बुक्स में भी आती रहेंगी. एंड हमारे मैगजीन्स भी आपको 2-3 महीने में मोस्टली तो ऑन जुलाई हनुमान साहब के डेथ एनिवर्सरी पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोस्टली द magazine also. The name of the magazine will also be again Ignited Minds by PHF. So our group is dedicated for imparting the knowledge, whatever little we know. Okay, and our master is Dr. Hanuman, of course. Please remember, anything that contradicts Dr. Hanuman, we think 10 times before applying that. We don't practice multiple medicine. We don't need to use 4-5 medicines at a time. We might require to change the medicines frequently, yes, of course, because at the state changes. But at a time, we use one remedy. We never mix the remedies and give. Yes, we also use biochemical medicines also. We do use by combination like 5-phos. Yes, we do use by 5-phos also in rare cases as nutrition. So we have our own observation and research about biochemics also. Okay, so you all are welcome to learn. You all are welcome to ask any questions anytime in the group. We'll answer you suitably. And once again, I thank all my team, all my children, all my colleagues, all my friends from the faculty, from the homeopathic fraternity, and learn from all the group, HHF, SHS, PHF, and ASRH, and what other groups? I don't remember the name. These are the groups, and West Bengal का भी एक group है और काफी groups है. तो आप सभी में जाएं. सिर्फ ये है कि किसी भी चीज में बहुत ज्यादा आप इंडल्ज मत ना करें. अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करें और वाइजली आप रूब्रिक्स यूज करें. ये नहीं कि आप मत करें, वो गलती से आप बचें कि बस पेशेंट ने बोला उसको रूब्रिक में कन्वर्ट किया और यूटिलाइज किया. वो गलती से आप प्लीज बचें. ये मेरी आपकी पर्सनल, आप सबसे पर्सनल विनती है, क्योंकि माइंड में मैं काफी कम से कम 20 साल से हम लोग 20 साल से ज्यादा हो गया हम लोग माइंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो हमको पता है कि किस तरीके से लेना है. तो आपके लिए ये थोड़ी सी कभी कभी आपको ग्लैमरस लगेंगी चीजें कि बच्चा जब बीमार पड़ता है तो माँ को चिपकता है और फिर जैसे ठीक लगने लग जाता है तो फिर खेलने लग जाता है. इसके लिए इसको कई लोग फिर मैग्नेटाइज डिजायर टू बी लेते हैं. तो वो गलत है. थोड़ा सा आप उसमें बचे, इन सब चीजों से, शॉर्टकट से आप लोग प्लीज बचे. वर्जन वाली जो चीजें हैं उससे भी आप बचे, क्योंकि वर्जन नाम की कोई चीज नहीं होती है. उसके अंदर उसका फील भी वैसा आना चाहिए वो पेशेंट में जब आप ले रहे हो. कि लोग बोलते हैं कि फियर एक्सट्रावेगेंस का वर्जन क्या होगा, तो ऐसा नहीं होता है कि इसका ये वर्जन होगा. हो सकता है, प्लीज रिमेम्बर, इट इज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो होगा. आपको पेशेंट में दिखे, बहुत आसान है, लेमैन्स लैंग्वेज के अंदर होता है सब कुछ रूब्रिक. और आपको सबसे मैं फिर से विनती करूंगा, आप ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन पढ़े. आप हैनुमन्स डॉक्टर हैनुमन की क्रॉनिक डिसीज, डॉक्टर हैनुमन की रेयर राइटिंग पढ़े, डॉक्टर केन्स की रेयर राइटिंग्स भी पढ़े. उसके बाद में आप GNM की किताबें पढ़े और डॉक्टर सैगल की बुक्स भी आप जरूर पढ़े. हमारी भी माइंड मेथड पे बुक्स है, वो भी है. HHF की भी किताबें है माइंड पे, वो भी आप जरूर पढ़े. और रियान शोल्टन की किताबें वो भी बहुत अच्छी है. डॉक्टर संकरन की किताबें है वो भी बहुत अच्छी है. ये सब पढ़िए. और रेपर्टरी, लेकिन आप याद रखिए आपको सबसे ज्यादा रेपर्टरी पढ़ना है.
ठीक है। और हम सब लोग एक है, हमारा किसी से कुछ नहीं है। हम सब HHF, SHS, PHF, ASRH, डॉक्टर साइगल्स, डॉक्टर विजयकर्स, डॉक्टर शंकरंस, ये सभी होम्योपैथी की सेवा में ही है। तो सबसे सीखिए, लेकिन अल्टीमेटली अपना दिमाग लगाइए, और कुछ अड़चन आती तो हम लोग हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, हेल हनुमान, हेल होम्योपैथी। Thank you, Padma, for today's introduction of Dr. Mansi. Thank you very much. You want to say anything, beta, Padma? The mic is over to you. मैडम नहीं है। Thank you, sir. Thank you. On behalf of all my team, I thank you all, and I thank my team specially for arranging this wonderful series of lectures. Thank you. God bless, and we all are there to help. Please remember. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless. Thank you, sir. Thank you, Mansi madam. थैंक यू सर। जी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद करो।